related to different department, that is RES. I have no nexus with the present litigation. On that pretext that I have to comply with the order, this impugned order came to pass, my lords. Which is that implement? My lords, A1 17/3/25 and 18/3/25. I was nowhere in party to. WP में है। Yes, lordship. तो यहाँ पे मैं तो पार्टी भी नहीं था सर। WP में हमारे खिलाफ ऑर्डर पास हो गया कि हमको कंप्लायंस करना, जबकि मैं पार्टी भी नहीं था अपील कंटेम्प्ट अपील कैसे होगी? सर। कंटेम्प्ट में गिल्टी कर दिया ना हमको, WP में ही कंटेम्प्ट के ऑर्डर कर दिए कि हम गिल्टी है सर। 17/3/25 का देखिए। But there is one state appeal is also connected with this matter, my lord. There is one state appeal is also connected, my lord. What has happened, my lord, in the state appeal, my lord, since the order could not have been complied with, my lord, so a contempt petition number 794/2024 was also filed, my lord, in which before the contempt court, my lord, the additional chief secretary was called, my lord, and the additional chief secretary has filed an affidavit before the contempt court, my lord. That affidavit is in reference number 2, my lord. In which, my lord, in para 5, we have mentioned that the state government has filed writ appeal number so and so, which is pending consideration before the division bench. आपके रेट अपील में नोटिस हुआ है? नहीं सर, उसमें नोटिस नहीं हुआ। कंप्लाई कर दिया ऑर्डर? सर नहीं, उसके लिए सर हमको कैबिनेट में जाना था। आज कैबिनेट की बैठक है। यदि आज कैबिनेट में अप्रूव हो जाएगा तो शायद रिट के ऑर्डर का कंप्लायंस हो जाएगा। तो माय सबमिशन इज दैट इफ इट कैन बी टेकन ऑन नेक्स्ट वीक, माय लॉर्ड, सो द क्वेश्चन वाइटल क्वेश्चंस मे बी ओवर बाय दैट टाइम, माय लॉर्ड। So this is a very typical kind of situation in this matter, my lord. So to resolve what has happened, my lord, the writ petitioner initially was appointed in 1981 on a contingency basis, my lord. Thereafter, in 1986, he has been regularized on a contingency basis. His services were terminated. The writ petition was filed. Writ petition was allowed with a direction to reinstate him, regularize him, and grant all consequential benefit. Thereafter, the contempt petition was filed. We have filed a compliance report, paying all benefits, etc. But the reinstatement order and regularization was passed on the post of Piyun in Janpat Panchayat, Beora. Now, this writ petition has been filed, second round litigation has been filed, in which he has contended that his service conditions have been altered because he has been appointed in a Janpat Panchayat, which is having a non-pensionable service. So the Honorable Court now second round of litigation has detailedly analyzed the matter and has directed the state government to regularize his service in the state government. So now he is a member of a Janpat Panchayat and we have to regularize him in the state government. So the additional chief secretary has filed an affidavit that the principal secretary or the additional chief secretary is not competent to do so. We need an approval from the cabinet. The pressy has been prepared. We have sent the pressy and today is the cabinet. पहले आपने गलत ऑर्डर कर दिया, दैट इज नॉन इट। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो अपना रेगुलराइजेशन ऑर्डर अपने डिपार्टमेंट में करे, तो उसमें कैबिनेट का रूल कहाँ पे आ गया? सर उसके लिए सर अपने प्रेसी बना के सर। अरे अब ये कोई चेंज ऑफ डिपार्टमेंट का मामला थोड़ी है सर। वो ये आपका गलत जगह अपॉइंट कर दिया, दैट ऑर्डर इज नॉन इट। वो आप प्रेस जगह अपॉइंट करिए सर। उसको भी हमने रिट अपील में कंटेस्ट किया है यहाँ पर कि वो उसका जो इनिशियल अपॉइंटमेंट था वो कंटिजेंसी पेड में रेगुलर हुए थे। तो रेस में थे, पंचायत अलग जी, पंचायत अलग है। डिपार्टमेंट में था ना उसका पहले कंटिजेंसी नहीं, वो कंटिजेंसी तो समय थी ही नहीं। ठीक सर, उसमें क्या था कि उनका जो बेसिक अपॉइंटमेंट था वो कंटिजेंसी में ही था। मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन सर मेरा दोबारा मत बोलना पड़ेगा। जी 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 सर, मेरा सिर्फ अनुरोध ये था कि इट मे बी टेकन ऑन नेक्स्ट वीक मालूम। इन द मीनवाइल द इशू कैबिनेट का है, not a matter of cabinet. Malad, the matter has been sent to the cabinet. Malad, today there is a cabinet meeting, Malad, and there is a likelihood, Malad, that after the absorption order, the writ order will be complied with, and there may not be any press too. So it may be taken next week, Malad. The things will be sorted out. These are the proceedings which we have filed before the contempt court, Malad, in which अभी पेंडिंग है contempt pending है। उसमें भी cost का भी जो था उसके लिए भी हमने undertaking दी कि sir we will pay the cost also, Malad. So it may be taken on next week, Malad, so that we can para 5 is there, Malad. ये साथ वहाँ अंडरटेकिंग दिया था कि कॉस्ट भी पेड कर देंगे और
We have supplied account number of the partisans. Word that capital. What can I have some? छह साल को क्या हुआ? तो 6-7 को सर वो जो कॉस्ट का 1 लाख था उसको भी देने की हमने अंडरटेकिंग दी है। तो सर देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व्ड बाय नेक्स्ट डेट मार्च, सो इट मे बी टेकन ऑन नेक्स्ट। और कोर्ट का जो इतना टाइम वेस्ट हो उसका वैल्यूएशन कैसे हो? 2013 से लॉक्स 2013 में माय सबमिशन इज दैट कोर्ट का जो इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप कंटेम्प्ट कोर्ट का उसका क्या हो? बट इट मे बी कंसीडर्ड ऑन द नेक्स्ट डेट मार्च। मैटर कैबिनेट का है ही। आपने गलत जगह अपॉइंटमेंट कर दिया तो जीरो ट्रीट करिए, नई जगह जहाँ अपॉइंटमेंट होना वहाँ करिए। आज शायद ये ऑर्डर हो जाएगा ऐसा लग रहा है। हमने कभी आज कैबिनेट थी। तो मेरा तो डिपार्टमेंट भी नहीं था, मेरे को जबरदस्ती सब्सिक्वेंट, मैं आरईएस का हूँ, उस वक्त ऑफिशिएटिंग ऑफिसर था आरईएस का। आरआरडीए के अंतर्गत इनका जो होना है, वो जो इसके ओआईसी साहब थे उस दिन कहीं दिल्ली चले गए, सुप्रीम कोर्ट के भी किसी केस में ओआईसी, तो मुझको भेज दिया गया और अंडरटेकिंग उन्होंने दे दी थी। और मुझसे बस इतना ही पूछा कोर्ट ने कितने और दिन में कर देंगे, तो जो वकील साहब ने बोला कितना और दिन बोल दो, मैंने बोल दिया, बाकी मेरा उसमें कुछ नहीं आता ना हमारे विभाग में, ना हम पार्टी थे, डब्ल्यूपी में भी पार्टी नहीं थी। रिव्यू लगा देता, रिव्यू नहीं लगा। कंटेम्प्ट का सर क्या रिव्यू? ये कंटेम्प्ट वो नहीं होगा सर, कंटेम्प्ट की तो अपील होगी, कंटेम्प्ट की अपील होगी ना सेक्शन 19 में। अगर वो छोड़ दिया होता कंटेम्प्ट में तो जाते, हाँ पनिश किया ना सर तो हम आ सकते हैं। नहीं, but when this order was passed, you were not there. कौन सा वाला सर? अंडरटेकिंग तो शुरू में दे गए, दूसरे अधिकारी साहब दे गए, मैं तो था ही नहीं सर। मुझसे तो बाद में सब्सिक्वेंटली उसी अंडरटेकिंग के लिए टाइम बढ़वाते रहे, जैसा मुझको एडवाइस करते रहे, आके खड़े हो। ना मेरा डिपार्टमेंट है, ना मैं उसके लिए कोई व्यवस्था कर सकता हूँ, मैं क्या अंडरटेकिंग दूंगा? प्रॉक्सी एक्चुअल लोगों के प्रॉक्सी थे। कई डेट्स में अपील हुए तो बिल्कुल हुए, ओआईसी हो गया। वो ऐसे नहीं थे हम, बिल्कुल नहीं थे। आपका पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा? आपका आरईएस में था क्या? आरईएस आरईएस में भी? आरईएस में नहीं था सर, देखे नहीं, पंचायत पंचायत थोड़ी ना आरईएस का। पंचायत में पंचायत पंचायत रूरल डिपार्टमेंट। तो हम रूरल इंजीनियरिंग के हैं, हमारे थोड़े ना वहाँ पे। there was an effort to create a supernumerary post there, Marat. तो पंचायत की अगर ये पंचायत में रेगुलराइज होगी। आप तो पंचायत में अपॉइंट हुए थे ना, जी तो पंचायत में रेगुलराइज होंगे। नहीं, जनपद पंचायत में किया हैं? जनपद पंचायत में किया, पंचायत तो पंचायती है ना, जनपद तो क्या लोकल जिला? बॉडी में किया, लोकल बॉडी में किया। अभी कहाँ किया आपने? अभी आपको कहाँ वापस किया और नियमित किया है? हमको किया है लॉर्ड से किए नक्कर फाइल किया है। कौन सा नेक्टर? जनपद पंचायत ब्यौरा Marat, that was the impugned order before the writ court. जनपद पंचायत में किया। नहीं, वो ऑर्डर कहाँ है? E5 तो W में दिख रहा है। E5 तो W में नहीं, कौन से वरिष्ठ पिटीशन में E5 हाँ, वो रेगुलराइजेशन का ऑर्डर है। E9 कौन सा सरकार का पार्ट? And of population.
P9. P9 है 23/4/14 का ऑर्डर है। ये यहाँ ज्वाइन किया कि नहीं किया? ज्वाइन करा, सारी सैलरी मिल गई। मिल गई? फर्स्ट राउंड की कंटेम्प्ट डिस्पोज ऑफ हो गई। हाँ, फिर सेकंड राउंड में ये आया कि हमारा मतलब इसकी ज्वाइनिंग से क्या हो रहा था, अब रिटायरल बेनिफिट में सिर्फ ये अंतर आएगा कि उनको पेंशनेबल सर्विस नहीं रहेगी, यदि ये जनपद में कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए हमको सुपरन्यूमरी पोस्ट की क्रिएट करके स्टेट में लेके आना था। उसके लिए आज कैबिनेट 2014 में ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, 19 में लेके आई थी, गलत किया। गलत। नहीं लॉर्डशिप, ये तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग 2018 तक चलती रही। वहाँ पे ऑर्डर P9 का ऑर्डर 2014 का एक्सेप्ट कर लिया, कंटेम्प्ट पेंडिंग थी लॉर्डशिप। ज्वाइन कर लिया, कंटेंट तो खत्म हो गई थी आपकी। 2018 में ऑर्डर हुआ था हाँ। कंटेम्प्ट का। वो डिसाइड हुआ, उसमें लिबर्टी P8 पेज 32 है लिखे हुए। उसमें लिबर्टी, हाँ उसमें लिबर्टी लिबर्टी थी। वो डिसाइड हुई थी 1/8/2018। वो खड़े हुए हैं। कोशिश कर ले। आपको तो इसके हो गए, इसके है। हाँ उसमें स्टे है। वो पनिशमेंट ऑर्डर सेटेड है 15 दिन का। मैं रिटायर भी हो गया सर उसके नेक्स्ट मंथ में, लास्ट में था। तो ये पहले बोल रहे हैं कैबिनेट से करा नहीं, इसको सर वो अपना करते ना सर, मेरे 15 दिन की सजा कर देंगे। रिटायर हो गया, ठीक। तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, इनको जेल भेजने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारा कंप्लायंस हो जाए। दोनों रेट अपनी एक साथ डिस्पोज ऑफ कर दें। रेट अपील में तो अंडरटेकिंग दे दी है, वो तो इंस्ट्रक्शंस हो ही गई वैसे ही लॉर्डशिप। कहाँ कब दी? नहीं, हमने उसमें अंडरटेकिंग दी है कि हम यहाँ कॉस्ट के लिए परस्यू करेंगे, वहाँ कैबिनेट जा रहे हैं। फिर सब्सिक्वेंट डेट में दूसरा ऑर्डर शीट जो आया सर, उसमें ये था कि कोर्ट ने बोला कि अभी तक कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं है रिट अपील में, कॉस्ट भी पे कर। तो कॉस्ट का भी इन अंडरटेकिंग दे दिया है, जमा कर। कॉस्ट भी पे कर। तो रेट अपील लेकिन जो हमारी रेट अपील इनफेक्टेड हो गया। सर जो ACS की अंडरटेकिंग है वो ये है कि हम परस्यू कैबिनेट से कर रहे हैं, सिंस शी इज नॉट ए कॉम्पिटेंट सुपरन्यूमरी पोस्ट क्रिएट करना है। कैबिनेट आपको कभी मना भी कर देता है। सर इसलिए मैं आपको सर निवेदन कर रहा था कि कल इसको नेक्स्ट वीक कर दें, तो विल सॉर्ट इट आउट। आज शाम तक या कल तक समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वीक as cabinet is likely to take decision. ठीक, we did fine.